بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل۔ کافی دوست یہ شکایت کرتے ہیں یا ان کے کمنٹس آتے ہیں، پڑھ کر دلی دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ کچھ دوست جو ہے نا، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ اچھا بزنس نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی میں آج ایک مختصر سی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ بات کریں گے، 4-5 پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹس پر کہ یہ انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 خامیاں ایسی ہیں کہ یہ اگر کسی بھی انسان کے اندر ہوں تو وہ کسی طرح کا بھی بزنس، چاہے وہ گوٹ فارمنگ کے متعلق ہو یا کوئی اور بزنس ہو، وہ بزنس میں کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج ان 4-5 جو باتیں ہیں، جو خامیاں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، ان پر مختصر سی بات چیت کریں گے تاکہ دیکھنے والے، سننے والے، وہ میرے دوست بھائی جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت ان کے اندر جو ہے وہ شوق ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں، قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، تو وہ ان اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے اندر یہ 5 خامیاں ہی ہوں گی۔ کچھ بندے ہیں کہ جن کے اندر 2 سے 3 یہ خامیاں بھی ہوں تو تب بھی وہ کسی کامیاب جو ہے وہ بزنس کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کروں گا کہ یہ 4-5 پوائنٹ آپ کے ذہن میں بٹھانے کی، تاکہ جو میرے دوست بھائی ہیں جو ان خامیوں کا شکار ہیں وہ اپنی خامیوں کو دور کریں اور بزنس میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنی خامیاں دور کر لیں، اگر خامیاں دور نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ کسی قسم کا بزنس نہ کریں، بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے، پیسہ ضائع کرنے کے، بہتر ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لیں، کوئی محنت مزدوری کر لیں اور بزنس کی طرف نہ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ کرنا چاہے تو کوئی دنیا کا کام مشکل نہیں ہے کہ جو انسان کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی بندے کے اندر اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ان کو دور کر لے، بزنس کو کامیاب بنا لے۔ تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو انسان کو بزنس میں کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے کہ وہ یہ عادت ہے، یہ انسان کی ایک نیچر بن جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ایک کام پر لگا ہوا ہوں، میں یہی کام میرے لیے کافی ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اگر صلاحیت ہے تو وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، وہ ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ آپ اگر ایک پرائیویٹ یا کوئی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 16 گھنٹے آپ کے پاس فری ہوتے ہیں۔ ان 16 گھنٹوں میں آپ جو نا آرام کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف اسی جاب پر جو آپ کی منتھلی سیلری آ رہی ہے اسی پر جو ہے نا وہ آپ اکتفا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والا بندہ وہ کبھی جو ہے نا وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، وہ ایک جو ہے نا لگن ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر کرنا چاہیں تو یقین کریں کہ ایک مقولہ ہے کہ نوکری جو ہے وہ ایک خاندان کو پالتی ہے، جبکہ کاروبار جو ہے نا وہ نسلوں کو پالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوکری جب تک آپ ہیں، آپ 60 سال عمر پوری کرتے ہیں، وہاں تک جو ہے نا آپ سیلری لیتے رہیں گے۔ جب 60 سال عمر ہو جائے گی، آپ اپنی جاب سے ریٹائر ہوں گے، پینشن 18, 20, 25 ہزار پینشن آ جائے گی، بس وہی آپ کے جو ہے نا گزر بسر کے لیے ہوگا۔ جب آپ کے سانس چلتے ہیں تب تک وہ پینشن لے رہے ہیں، بعد میں جو ہے نا کوئی فیملی کے نام ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے، وہ بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ آج کل آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 18-20 ہزار روپے سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ تو جو بزنس ہوتا ہے، بزنس ایک دفعہ آپ نے سیٹ کر لیا ہے،
उसको ग्रो कर लिया है, अच्छा आपका बिजनेस बन गया, तो आपकी आने वाली नस्लें जब तक वो बिजनेस को अच्छे तरीके से जो चलाती रहेंगी वो बैठ कर खाती रहेंगी। तो बिजनेस इसलिए कहते हैं कि वो नस्लों को पालता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी मेरे भाई जॉब पर्सन हैं, नौकरी कर रहे हैं, 16 घंटे आपके पास फ्री होते हैं, आप उस 16 घंटों में भी से 8 घंटे अपने आराम के लिए, अपने बाकी जो है ना घर के मामलात के लिए निकाल दें। और 8 घंटे अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं और 8 घंटे आप छोटा मोटा साइड बिजनेस खोल लें, उसको 8 भी नहीं, आप 4 से 6 घंटे उसको अगर टाइम दें, तो आप एक बेहतरीन साइड बिजनेस के तौर पर उसको चला सकते हैं। क्योंकि घर के आपके अखराजात तो चल रहे हैं ऑलरेडी, आप इतना इनकम इतनी है कि आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं। और आपसे बेहतर जो है ना वो बिजनेस को कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, उसको मजबूत मुस्तकम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके माली हालात ठीक हैं, आपके घर के अखराजात चल रहे हैं। आपने सिर्फ जो है ना क्या करना है कि बिजनेस को सिर्फ जो है ना 4 से 6 घंटे आपने टाइम देना है। तो पहली खामी ये होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ चुकी होगी कि मेरी बात करने का मकसद कि बंदा एक ही जगह का होके रह जाए और आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत ना हो, तो ये बहुत बड़ी खामी होती है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो किसी को फॉलो करना। फॉलो का मतलब ये है कि एक बंदा है, मैं यहाँ पे यही मिसाल आपको दूंगा कि फ़र्ज़ किया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जो मैं 2-4 पॉइंट टूटे फूटे आपको बता रहा हूँ, आपने वही पॉइंट अपनाने हैं, 2-4 दिन उन पर अमल करना है, देखना है कि यार इनमें से जो है ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने वो वीडियो छोड़नी है, दूसरे यूट्यूबर को पकड़ लेना है, उसकी वीडियो देखनी है, 2-4 मिनट उसकी वीडियो देखेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये भी इसकी बातें भी अच्छी नहीं हैं, या इन बातों से जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप किसी और यूट्यूबर को पकड़ लेते हैं। मतलब है कि आप किसी के पीछे लगाकर चलना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि कोई बंदा ऐसी जो है ना वो वीडियो हमें दिखाए या कोई ऐसी बात बताए कि जिससे खुद ब खुद काम होना शुरू हो जाए। तो जब तक आप किसी के चलते रहेंगे तब तक आप किसी मकाम को पर नहीं पहुंच सकेंगे। आपको जब तक खुद अमली तौर पर मैदान में नहीं उतरेंगे, खुद लीड करने की कोशिश नहीं करेंगे। मज़ा तब होता है कि बंदा फॉलो बनकर किसी का फॉलोअर बनकर ना चले, बल्कि खुद लीडर बनकर चले। जब खुद आप में ये आप हिम्मत करेंगे, आप खुद आगे चल कर बाकी लोगों को जो है ना वो गाइड करेंगे, तो उस वक्त आप जो है ना वो कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए किसी के पीछे लाकर चलने से कुछ हासिल नहीं होता है, जब तक बंदे को अंदर ये सलाहियत ना हो कि वो खुद किसी को लीड कर सके। तो लीडर बनना सीखें, फॉलोअर बनना ना सीखें। तो इसलिए अगर किसी बंदे की ये नेचर है, ये तबीयत है, तो वो इस तबीयत को थोड़ा बदले, अपनी इस खामी को दूर करे, तो आगे बढ़ने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करे। क्योंकि बिजनेस ये होता है, बेसिकली बिजनेस एक आज़ाद बंदे का काम होता है। जो बंदा जो है ना वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता है, किसी के मातहत रहना नहीं पसंद करता है। वो खुद कहता है कि मेरा अपना बिजनेस हो, थोड़ा हो, छोटा हो, कम इनकम हो, लेकिन मेरी अपनी हो, मुझे कोई पूछने वाला ना हो। तीसरा पॉइंट कि बचत करने की आदत। आप फर्ज किया कि सैलरी ले रहे हैं 60,000, 50,000 आपके घर के अखराजात हैं, 10,000 रुपये आपको मंथली बच रहे हैं। आप वो 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं कि साइड पे जो है ना वो रख ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं उनको। मतलब है कि वो 10,000 रुपया आपकी सेविंग हो रही है। तो सेविंग का जहाँ तक तल्लक है कि 10,000 आपने सेव कर लिया है, साल के बाद जब वो आप अकाउंट से निकालेंगे तो वो 10 का 10 ही रहेगा। अगर उस 10,000 का आप छोटी मोटी कोई चीज़ लेकर छोड़ देते हैं, छोटा कोई दुम्बा ले लेते हैं, कोई लेला बकरा ले लेते हैं, 10,000 का कोई बकरी का छोटा बच्चा ले लेते हैं, तो साल के बाद अगर आप देखें, वो आज जो आपने 10,000 का लिया है, साल के बाद जो है ना वो 40-50,000 का होगा। 40-50,000 का नहीं भी है, 30,000 का ही है। तो आपने 2 गुना उससे फ़ायदा उठा लिया है। 10,000 आपने सेविंग की थी, साल के बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो 30,000 का सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप बचत की तरफ ना जाएं, जो आपकी सेविंग है उसको
आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें उसकी। जब उसको इन्वेस्ट कर देंगे साल के बाद वो जो है ना चीज़ वो बढ़ती जाएगी। बात पॉइंट बड़ा जो है ना ये काम वाला है, इस पर गौर करें और इसको समझें कि सेविंग के बजाय उस पैसे जो आपके पास पैसा उसको इन्वेस्ट करें ताकि साल के बाद वो आप उससे दुगना तिगना फ़ायदा हासिल करें। तो एक ये जो है ना बचत करने वाली जो है ना ये खामी ये अच्छी नहीं होती है। जिस बंदे के अंदर ये खामी है वो भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है सिक्योर रहना। सिक्योर रहने का मतलब क्या है कि अगर आपके जहन में ये चीज़ आती है कि अब मेरी नौकरी लगी हुई है, धूप है, छाँव है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जैसे भी हालात हैं महीने के बाद मुझे सैलरी मिल जाती है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कुछ करूँगा, जैसे कि मैं पहले पॉइंट की बात करूँ कि जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपकी अगर ये सोच है कि यार मैं अगर 8-10 लाख रुपए लगा दूंगा या मेरे पास सेविंग जो है ना वो 2-3 लाख रुपए है, वो मैं अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं खुद तो मुलाजिम हूँ, मैं हो सकता है उसको टाइम दे सकूँ ना दे सकूँ, वो 2-2.5 लाख रुपए मेरे डूब जाएंगे, वो ज़या हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि आप में नुकसान हो जाने का खतरा है, तो नुकसान आप बर्दाश्त करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करें कि अगर आप के आज 1 लाख रुपए नुकसान होंगे, उससे आप जो ना क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं किस गलती की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। इंसान कहते हैं कि गलतियां करता है और उससे गलती से सीखता है। जब वो 1 लाख रुपये आपका नुकसान होगा ना तो आप दोबारा वो गलती कभी भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो आपने एक सबक सीख लिया है। तो इसलिए जो है ना वो नुकसान से डरा ना करें, नुकसान कोशिश किया करें कि नुकसान ना हो, नुकसान से बचें। अगर फिर भी आपकी सारी कोशिशों के बावजूद कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें तकदीर का भी अमल दखल होता है। तो उसमें ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा आपने बिज़नेस शुरू किया है तो आपका 10-15 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है तो आइंदा भी जो है ना ऐसा ही होता रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए सदका खैरात निकालें तो इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं होगा, और इस नुकसान को बर्दाश्त करने की अपने अंदर हिम्मत जब तक पैदा नहीं करेंगे आप किसी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है कि एक बंदे के अंदर इस चीज़ का होना कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो दूसरा नहीं जानता है, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता है, जो जितना मैं इल्म रखता हूँ इतना कोई दूसरा नहीं रखता है। तो ये बंदे की गलत सोच होती है। इसमें अमूमन हर फील्ड में ये इस तरह के बंदे पाए जाते हैं। ख़ासकर हमारे इस फील्ड में यूट्यूबर भाई भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मैं जो कुछ वीडियो में बताता हूँ वही अरफ़े आखिर है, उससे आगे जो है ना कोई दूसरा नहीं बता सकता है। या मैं जो है ना वो लोगों को अच्छा जो है ना वो मोटिवेट कर रहा हूँ और बाकी जो है ना वो आवाम का व्यूवर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो सोच होती है जिस बंदे के अंदर, वो किसी बिजनेस में कामयाब नहीं होता है। अपने से हर किसी को बेहतर समझें, हर किसी को बेहतर जानें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास इतना इल्म ना हो तो मेरे से जो है ना दूसरा जो भाई है जो वो ऐसा पॉइंट बता दे कि जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। इसलिए इस बात को कि मैंने जो कुछ सीख लिया है मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ, इससे आगे जो है ना मुझे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है या मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिखलाई वाला जो अमल है ये मेरे भाई मरते वक्त दम तक भी ख़त्म नहीं होता है। जब तक बंदा ज़िंदा रहता है कोई ना कोई जो है ना वो सबक ज़रूर उसको सीखने को मिलता है और बंदा सीखता रहता है। तो ये सीखने वाला अमल जारी रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक मतलब कि टूटी फूटी बातों ज़ुबान में या टूटी फूटे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो इन अल्फाज से आपको असल कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि एक जो है ना वो बंदा टू द पॉइंट भी बात कर रहा हो, अच्छी बातें कर रहा हो, उसका लबो लहजा भी, उसकी बोल चाल भी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी बातों से आपको फ़ायदा ना हो, मेरी बातों से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। ये ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हर किसी को अपने से बेहतर समझें और जो बात आपको नई देखने में या सुनने में आपको सामने आती है उस चीज़ पर गौर किया करें और उसको सीखने की कोशिश किया करें, उसको अपनाने की कोशिश किया करें, ना कि उसके बल्कि जो है ना पीछे
آپ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ فلاں نے ایسی بات ایسے نہیں بتائی ہے، ایسے بتائی تھی تو میں نے ایسے کر دی ہے. تو اگر ہم جو ہے نا ایک بات بتاتے ہیں، ایک پوائنٹ بتاتے ہیں، تو وہ ایک اشارہ آپ کو دیتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آگے اس پوائنٹ کو آپ نے پک کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور اس پر اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے جس بندے کے اندر یہ میں والی بات ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دوسرا نہیں جانتا ہے، وہ بندہ بھی کبھی کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں، بزنس کیا کسی بھی فیلڈ میں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ 4-5 ایسی خامیاں تھیں کہ جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، وہ کبھی کسی بزنس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ اپنے جو ہے نا وہ اصلاح خود کرے، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی تو بندہ جیسا بندے کا باہر اجلا ہوتا ہے، اسی طرح اگر اندر بھی بندے کا صاف ہو جائے تو اس کے جو ہے ساری جو ہے نا وہ بگڑی بھی بن سکتی ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.